Maharaj, very nice to have your association over Zoom. But we can't, I don't see a video. Your video is closed? Your volume, Maharaj volume. Yes. Is this volume okay? Your audio is now okay, Maharaj. Little bit more in bit better. Okay. Here are technical So we will tools. do from our side, Maharaj. You can increase the volume here. They are doing from their side. They are projecting on the temple. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. We have IT. Yes, Maharaj, your volume is okay now. But I can't see your video. Why can't I see the video? Oh, they have Oh, projected this. Mention. I like to see everyone's. Okay. Now I can see your. Jai Maharaj, that mic little bit had to be away from your mouth. A little bit. Little bit. It's okay now. आप बोलिए तो हाँ yes. Hare Krishna. हाँ. Is it okay? yes, Maharaj, now you are okay. Okay, so what? Today we are starting the program, Maharaj. Let me say a few words and then first we will be speaking. I can go second also if you want. Okay. Today is the most auspicious occasion of the 44th anniversary of the inauguration of the temple of Sri Sri Radha Ras Bihari Ji. Sri Sri Radha Ras Bihari Ji ki. Sri Sri Radha Ras Bihari Mandir ki. Today, Sri Sri Radha Ras Bihari Mandir was inaugurated on the Makara Sankranti day, 1978, in fulfilling the promise of Srila Prabhupada to their lordships, Sri Sri Radha Ras Bihari Ji, that Srila Prabhupada would make a wonderful marble palace for Sri Sri Radha Ras Bihari to reside. And that promise was fulfilled on this particular day 44 years ago. So we are very happy to be assembled here to celebrate. Many devotees are in the temple, and also we welcome all the devotees online viewing this program. So today, this Bhagavatam class slot we have made into a session where all those devotees who have been part of this journey of building this temple of Sri Sri Radha Ras Bihari Ji and taking it forward. So this whole journey began very long time back in 1965, before even Srila Prabhupada went to the United States. He saw this land and he thought that if I can get this piece of land, I can build a nice temple for Krishna. That is the original thought. From where in 1971, when Srila Prabhupada was preaching along with his devotees in Mumbai, the offer came for this very particular land. But in 1972, Srila Prabhupada made the foundation stone laid after moving in here. And then onwards, there are so many struggles. And His Holiness Gopala Krishna Goswami Maharaj was part of the journey of struggle in the Hare Krishna land before inauguration, before 1978. And after the inauguration, the journey continued and so many developments have happened. So we have got the senior devotees of Hare Krishna land, His Grace Bhima Prabhu, His Grace Devikanandan Prabhu, His Grace Surdas Prabhu, His Grace Brajari Prabhu, and His Holiness Ananta Krishna Das Goswami Maharaj. All of His devotees will be joining us in taking us along the memory lanes and sharing their experiences, realizations, and then tips for carrying forward the legacy of Srila Prabhupada, that Srila Prabhupada wanted it for Hare Krishna land. So today's program will be
His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj will speak first, and after that, senior devotees will be speaking. And at the end, there is a book going to be released, Visions Unfold. Visions Unfold, which is a book containing from the very beginning, Srila Prabhupada, how he came to Mumbai, different steps were taken to acquire this land, how the temple was built, and after building the temple, the second phase, several developments happened, what the temple is now, different departments, all these things are made in a coffee table book, called coffee table book, a lot of pictures, less text. But there is no Will be released. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj will release that book at the end of the program. So with that short introduction, we request now His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj to speak and share his memories as well as give thoughts and instruction for all of the devotees in the present generation. The generation has changed. 20 years to 30 years is one generation actually. More than one generation is gone. Now second generation, third generation is coming. So the legacy has to go forward. So we request His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj to speak and give us thoughts for taking forward the legacy of Srila Prabhupada for Hare Krishna land, Jugu, Mumbai. Do I speak in Then I English? request His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj to speak. Mukundamala, is my sound clear? Is my voice clear? Volume is clear, Maharaj. It could be little bit more clear, it will be better. Okay. You can start, Maharaj. If there is anything needed, we can just... If I'm not being heard, you can signal with your hands. Okay? Yes, Maharaj, please start. You are okay, Maharaj. You can hear me? Can you hear me clearly? We are able to hear you very clearly, Maharaj. Okay. Om Jnanantimirandasya Jnananjanashvakya Chakshurunmilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavestam Sthapitamena Bhutale Swayupakadamayam Dati Swaha Padantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna. Should I speak in English or Hindi or both? I need some direction. Mukundamala? You can speak in Hindi. In Hindi? Yes, Maharaj. Okay. तो आज जैसे आप जानते हो बहुत ही शुभ दिन है. आज के दिन 44 years ago इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था. आप सब जानते हो कि प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा संघर्ष किया था इस मंदिर को बनाने में. प्रभुपाद जी का बॉम्बे से संबंध बहुत पुराना है. 1932 में प्रभुपाद बॉम्बे में आए थे. प्रभुपाद बिजनेस कर रहे थे. उस समय गौड़ी मठ के 2 सन्यासी आए थे बॉम्बे में मंदिर की स्थापना के लिए. तो प्रभुपाद जी ने मिले बॉम्बे में और तीनों ने प्रभुपाद जी का उनका बहुत सहयोग दिया वहाँ मंदिर खोलने के लिए. भक्ति सिद्धांत जी 1933 में आए थे उस मंदिर की मूर्तियों की स्थापना के लिए. और प्रभुपाद जी के गुरु भाइयों ने कहा भक्ति सिद्धांत जी से, हमें बाबू ने बहुत सेवा की इस मंदिर के उद्घाटन के लिए, उनको प्रेसिडेंट बना दो मंदिर का. भक्ति सिद्धांत जी ने कहा उन्हें रहने दो जो जाए और ठीक समय पर वो प्रचार बढ़ाएंगे. तो बाबा जी का बड़ा पुराना संबंध था. ये बॉम्बे था स्थान जहाँ से प्रभुपाद जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण पत्र डाला था अपने गुरु को. 1935 में 1936 में प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत जी को लिखा और कहा आपके इतने सन्यासी शिष्य हैं और आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा. भक्ति सिद्धांत जी ने उस पत्र के उत्तर में वही संदेश दिया जो कि उन्होंने प्रभुपाद जी को दिया था जब वो पहली बार
Krishna Maharaj, just a minute, Maharaj. Your mic could be made a little bit away from your mouth, little bit away. Okay. Clarity is a little less, so just. Oh, clarity is less. I have an expert IT. Is it better now? Is it better now or no? Very nice. Now better, Maharaj. Yes. Okay. तो प्रभा जी की एक बहुत फेमस व्यास मुझे ऑफरिंग थी अपने गुरु के प्रति से वैष्णव इसमें प्रभा जी ने कहा एब्सोल्युटली सेंटिमेंट और प्रूव भक्तिसिद्धांत जी ने अपनी शिक्षा द्वारा ये स्थापित किया कि भगवान का दिव्य रूप है। तो प्रभुपाद का बॉम्बे से बहुत पुराना संबंध था और प्रभुपाद जी जैसे आप जानते हो बड़े संघर्ष के साथ पश्चिम देशों में पहुंचे। 1921 में भक्तिसिद्धांत जी ने कहा था तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पश्चिम देशों में। तो ये था प्रभुपाद के मन में विचार और 1965 में प्रभुपाद जी विदेश गए थे। तो विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी जू के इलाके से कई बार गुजरे थे। श्रीमती मुरार जी ने प्रभुपाद जी का सहयोग दिया था श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद को प्रकाशित करने के लिए और फिर प्रभुपाद जी को पता लगा कि उस धार्मिक औरत के कई जहाज भी चलते हैं। तो प्रभुपाद जी बम्बे आए थे और वो ठहरे थे कहाँ, इंडिया नेविगेशन कंपनी के जो कारखाना एम्प्लॉयज़ के घर थे वहाँ ठहरे थे और प्रभुपाद जी रोज आते थे श्रीमती मुरार जी के पास उन्हें भागवतम सुनाने के लिए। तो उस समय प्रभुपाद जी ने ये हरे कृष्ण लहर का दर्शन लिया था बाहर से और उस समय जंगल ही था ये। प्रभुपाद जी के मन में प्रभुपाद जी ने ये प्रार्थना की थी कि अगर आप कभी मुझे ये स्थान दोगे तो मैं आपके लिए एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बनाऊंगा। तो ये था प्रभुपाद जी का विचार। So 1970 Prabhupada returned to India with hundreds of his Western disciples और प्रभुपाद जी को दुख होता था ये देखकर कि भारतवासी अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने भारत का प्रचार शुरू किया कहाँ, बॉम्बे से। प्रभुपाद said, Bombay is the gateway of India and the most important city in India. So if people in Bombay take to Krishna consciousness, then all of India will take. तो प्रभुपाद जी बॉम्बे आए तो वो सबसे पहले ठहरे सक्सेरिया जी के घर में 74 मरीन ड्राइव। मुझे ये एड्रेस अभी भी याद है क्योंकि हमने कई पत्र डाले थे प्रभुपाद जी को इस एड्रेस पर 74 मरीन ड्राइव। तो प्रभुपाद जी का पहला प्रोग्राम हुआ था विदेशी भक्तों के साथ साधु समाज में। तो प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार शुरू किया अपने विदेशी शिष्यों के साथ बॉम्बे से और ये पहली बार था कि भारत प्रवासियों ने देखा विदेशी भक्त ये धोती साड़ी इत्यादि में। तो प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया और इस्कॉन का पहला केंद्र खुला था बॉम्बे में श्री आकाश गंगा में। आकाश गंगा मॉडर्न रोड में है और मेरे ख्याल से तीसरे मंजिल या 7वें मंजिल में हमारा मंदिर था। 3000 रुपये किराया देते थे उस समय, 3000 और 4 कमरे का फ्लैट था, एक कमरे में प्रॉपर थे और उसी बिल्डिंग में पाकिस्तान एम्बेसी का भी और ब्रांच थी। तो उन दिनों में भारतीय लोग कहते शक करते थे ये अमेरिकन या ये तो नहीं है। तो पहला केंद्र खुला था आकाश गंगा में, पर प्रभुपाद जी खुश नहीं थे। 4 कमरे का काम, 4 कमरे का मकान था। तो प्रभुपाद जी रोज सुबह जाते थे अलग अलग स्थानों में, कभी बाराबाई हिल, कभी मॉडर्न रोड, गुलाबाग। प्रभुपाद जी क्यों घूमने थे हर जगह,
उन्हें एक अच्छा स्थान चाहिए था जहाँ की वो मंदिर बना सके। तो फिर प्रभुपाद जी को सूचना मिली कि एक मिस्टर एन है, मिस्टर नायर, जो कि उस समय बॉम्बे के शेरिफ थे। शेरिफ इज एन ऑनरी पोजीशन और बड़ी वेल नोन मैन। उन दिन में बॉम्बे का एक पेपर था, फ्री प्रेस जर्नल। अभी भी है पर बहुत छोटा बन गया है। तो फ्री प्रेस जर्नल इन दोज डेज was a very prominent paper, and this Mr. N was the editor in chief. तो प्रभा जी को सूचना मिली कि जू में उस समय जू की आबादी थी कोई 10,000 लोग। जू में एक सज्जन है जो जमीन बेचना चाहते हैं। तो प्रभा जी मिले मिस्टर नायर को और उन्होंने कहा हाँ ये मेरी जमीन है, 4.5 एकड़ आप ले सकते हो। तो उनका सौदा हो गया। और इसको पापा जी ने न्यूयॉर्क के भक्तों को कहा ये जमीन में खरीद रहा हूँ, मुझे एडवांस देने के लिए पैसा दो। तो न्यूयॉर्क के भक्तों ने पैसा जमा किया था न्यूयॉर्क में नया मंदिर लेने के लिए। तो प्रभु ने कहा दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वही पैसा फिर उन्होंने बॉम्बे भेजा एडवांस देने के लिए। तो प्रभा जी जब एडवांस दे दिया तो प्रभा जी की इच्छा थी कि यहाँ मूर्तियों को भी ले आए। राधा राजबिहारी की जी की पूजा हुई थी आकाश जब उनकी स्थापना हुई थी पांडाल में, जो मंदिर आकाश गंगा में था। और प्रभा जी चाहते थे कि इन मूर्तियों को यहाँ जू में ले आए। तो प्रभुनंद महाराज और 3 भक्त, 2 और भक्तों ने 2 टैक्सियों में भगवान को अपनी गोद में बिठा कर लेके आए। तो प्रभुपाद जी को पता लगा कि ये जो मिस्टर एन है ये अपना वचन हमेशा पालन नहीं करते। पहले भी उन्होंने किसी को बेची थी जमीन और फिर झगड़ा हो गया और जमीन वापस दे ली। तो प्रभुपाद जी बड़ी सावधान थे और प्रभुपाद जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी यहाँ मूर्तियों को ले जाए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा once the deities are there then the land belongs to them। तो प्रभुपाद जी इस विचार के साथ ब्रह्मानंद और एक और भक्त अपनी गोद में बिठाकर राधा राजबाई को कहाँ लाए, उनको जू में लेके आए। तो जू में टिन शेड के साथ एक मंदिर भी बन गया था। और प्रभा जी एक तरफ से प्रभा जी का झगड़ा था मिस्टर नायर के साथ जमीन के सिलसिले में, दूसरी तरफ से जो पड़ोसी लोग थे उनमें कई ने क्रिटिसाइज किया। दिस कीर्तन इज न्यूसेंस शब्द इस्तेमाल किया था। और उन दिनों में काफ़ी होटल बने थे इस इलाके में और इरादा था कि यहाँ भी होटल बनाने का। तो वो इरादा सफल नहीं हो पाया और कईयों ने अपोज किया कि यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो एक तरफ से संघर्ष था जमीन को इसका के पोजीशन में पूरा लीगली डालने में, और दूसरी तरफ से परमिशन नहीं मिल रही थी। उन दिनों में 1975 में एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी और एमरजेंसी के समय एक अच्छी चीज़ ये थी कि सारे पॉलिटिशियन चुप हो गए थे। तो गिरा स्वामी और मैं हम जाते थे रोज चर्च गेट में, कभी किसी मंत्री को मिलना, कभी किसी को मिलना, और मिलते मिलते हमें एक महाराष्ट्रियन पॉलिटिशियन ने 2 व्यक्तियों से परिचय करवाया। एक था एल.बी. चौहान जो उस समय चीफ मिनिस्टर था बॉम्बे का, और दूसरे थे एक मिस्टर पगे थे कांग्रेस पार्टी के बॉम्बे के चीफ। तो इन दोनों ने बहुत मदद की और इन्हें मैं लाया था प्रभा जी से मिलने के लिए भी।
और एस.बी. चौहान चीफ मिनिस्टर थे, हमारे ईमानदार आदमी थे। हमारे सामने उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया, 11 में हमने कई बार मिले, फ़ोन किया, बोला ये इस्कॉन को NOC दे दो, क्यों तंग करते हो। तो उसके द्वारा हमें परमिशन मिली मंदिर बनाने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने हर युद्ध में Prabhupada was victorious because he was doing it for Krishna. So then we got the permission. Then we wanted to build the temple. Prabhupada जी की योजना थी, प्रभुपाद जी का प्रयास था कि 6 महीने के अंदर यहाँ मंदिर बन जाए। तो फिर हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। पहले कंस्ट्रक्शन शुरू किया इन हाउस, और इससे पहले एक डच डिवोटी थे, डच डिवोटी थे जो प्रभुपाद जी को मिले थे पंडल प्रोग्राम में। और जब प्रभुपाद जी को पता लगा वो आर्किटेक्ट है, तो प्रभुपाद जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। और प्रभुपाद जी दिन रात सोच रहे थे बॉम्बे मंदिर का क्या डिज़ाइन होना चाहिए, और जैसे कोई पॉइंट आता था प्रभुपाद जी सुराब को बता देते थे। जब सुराब आए प्रभुपाद जी को मिलने, प्रभुपाद ने राधा गोविंद जी, भारत के अनेक राजस्थानी स्टाइल के मंदिरों की तस्वीरें दिखाई सुराब को, और उन्हें सिखाया, समझाया क्या चाहिए मुझे। प्रभुपाद जी ने गेस्ट हाउस टावर्स के विषय में खास एम्फसाइज किया था। असल में आप मानोगे नहीं, कीनिया एक छोटा देश है, पर प्रभुपाद जी उस शहर में एक होटल है हिल्टन होटल, हिल्टन होटल का पूरा डिज़ाइन, ये मंदिर के गेस्ट हाउस का पूरा डिज़ाइन हिल्टन होटल के डिज़ाइन से लिया गया था। प्रभुपाद जी को बड़ा अच्छा लगा था, तो उन्होंने ये सब आपको सुना, समझाया। तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, एंड फर्स्ट वी वर डूइंग इन हाउस डिपार्टमेंटलाइज कंस्ट्रक्शन, पर इन हाउस काम बहुत स्लो जा रहा था, और प्रभुपाद वॉज वेरी अनहैप्पी। वगैरह समय में गए थे बांद्रा में, हमारा एक मेंबर थे रमेश धीर। रमेश धीर रोके, रमेश धीर was the head of ECC, वो एक इंजीनियरिंग कंपनी थी जो कंस्ट्रक्शन में करती थी, लार्सन टूब्रो की थी। Can you hear me now? Yes, Maharaj. Okay, Yes, Maharaj. okay. ECC, Larsen and Toubro. या तो रमेश धीर उसको हम लाए थे वे प्रभुपाद जी को मिलने के लिए, और रमेश जी ने, उनकी कंपनी ने कांटेक्ट लिया ये मंदिर बनाने के लिए। उन्होंने हमको कैश फ्लो एनालिसिस दिया था, 7 लाख रुपए महीना। तो प्रश्न ये था 7 लाख रुपए महीना कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जी को बॉम्बे में कलेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। फिर प्रभुपाद जी की कृपा से रामेश्वर स्वामी अमेरिका बीबी जी ने मदद करना शुरू किया। तो ये मंदिर तेजी के साथ बन रहा था। प्रभुपाद जी जहाँ भी प्रभुपाद जाते थे अपने साथ राधा राजबिहारी की मूर्ति की तस्वीर साथ ले जाते थे। और प्रभुपाद स्पेंट more than 500 days in Bombay. 545 days he spent in Bombay because of so many difficulties that were faced. तो प्रभुपाद जी कह रहे थे जल्दी बनाओ। प्रभुपाद जी पंचशील गए थे, और जब वापस आए तो प्रभुपाद ने कहा I want to stay in my apartment. और प्रभु ने कहा your apartment is not ready, Prabhupada. It will take 3 more weeks. Prabhupada, no, I'll go and stay there now. Everything is not ready. तो दरवाजे भी नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो प्रभुपाद ने कहा I will go there. प्रभुपाद जी के मन में ये भाव था कि मैं वहाँ रहूँगा, बैठूँगा तो ये काम जल्दी होगा। तो भक्तों ने प्रभुपाद जी को 5 मंजिल तक पैराग्रिड में उठा कर ले गए, और फिर प्रभु जी यहाँ से फिर गए थे वृंदावन। तो प्रभु ये बॉम्बे का मंदिर बना था प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरा करने के लिए।
प्रभुपाद जी ने राधा राजबाई को वचन दिया था, मैं आपके लिए मंदिर बनाऊंगा। और जब ये ज़मीन प्राप्त हुई, प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने जब ये ज़मीन देखी, उन्होंने पहचान लिया यही घर है जहाँ मैं जो ये ज़मीन है जिसके विषय में भगवान को वादा दिया था। देखिए प्रभुपाद जी का भाव, उनके पास अंधेरी तक जाने अंधेरी तक पहुंचने के लिए वो पैदल जाते थे, पैसा बचाने के लिए। कोई पैसा नहीं था। जब भी उन्होंने कहा, मैं जब अगर आप ये ज़मीन दोगे तो मैं आपके लिए एक मंदिर बनाऊंगा। जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे, जब न्यूयॉर्क गए थे, तो एक दिन प्रभुपाद जी एक पार्क में बैठे थे और उनके साथ एक मिस्टर रूबन बैठा था। मिस्टर रूबन वो था बस कंडक्टर। तो मैंने कहा, मैं कोई भेदभाव नहीं करता, बस कंडक्टर कौन है और मिलियनर कौन है। तो उस बस कंडक्टर ने प्रभुपाद से पूछा, यू आर अ सेंटली मैन स्वामी जी, व्हाट डू यू डू? स्वामी जी ने कहा, मैं भगवान का प्रचार करता हूँ और मेरे मंदिर हैं सारे विश्व में, केवल आज वो प्रकट नहीं हो रहे पर कल होंगे। तो प्रभुपाद जी का उसी प्रकार का अब देखिए जू में प्रभुपाद जी ने ज़मीन देखी थी। उस समय प्रभुपाद जी के पास बिल्कुल धन नहीं था, अंधेरी तक स्टेशन तक पैसा बचाते थे पैदल जाकर। ऊपर प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की थी, अगर आप ये ज़मीन दोगे मैं आपके लिए एक सुंदर मंदिर बनाऊंगा। तो प्रभुपाद जी की इच्छा और प्रयास से ये मंदिर बना। और कई भक्त हैं जैसे गिरिराज स्वामी, कमल कृष्ण महाराज वगैरह, इन्होंने बहुत सब प्रयास किया इस योजना को सफल बनाने के लिए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम ये मंदिर खोलें। उनके while he was on the planet, we were 2 months late. जब प्रभुपाद जी अपने 5th फ्लोर कमरे में थे तो नीचे मार्बल की आवाज़ है, मार्बल को मार्बल लगा रहे थे, तो ऊपर टिक टिक आवाज़ आ रही थी। तो प्रभुपाद जी से भक्तों ने कहा, आई होप दिस इज नॉट डिस्टर्बिंग यू प्रभुपाद। प्रभुपाद said, this टिक टिक it is kirtan, because they were making a temple of the Lord. So ये मंदिर खुला था जनवरी 14 सैटरडे, मकर संक्रांति 1978। तो इस मंदिर को उद्घाटन में कई प्रसिद्ध व्यक्ति आए थे। उन दिनों में बॉम्बे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे वसंत दादा पाटिल, वो आए थे। एक और पॉलिटिशियन थे राजनारायण, हेल्थ मिनिस्टर थे वो फेमस बन गए थे क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था इलेक्शन में, तो वो नेशनल हीरो बन गया था। तो ही ऑल्सो केम फॉर द ओपनिंग। और एक थे मिस्टर पटवारी, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, केम फॉर द ओपनिंग। मुकुंदा स्वामी भी आए थे PR इसका अरेंज करने के लिए। तो मुकुंदा स्वामी हम कई प्रसिद्ध अंग्रेज विदेशी अखबारों के पास गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़ी कवरेज दी थी। न्यूज़वीक मैगजीन उस समय बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी। उनके रिपोर्टर आए हांगकांग से, उन्होंने आर्टिकल लिखा, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। ये बताया कैसे ये व्यक्ति बिल्कुल थोड़ा कमाता था, उसके पास कोई सुविधा नहीं थी, अब इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड संस्था बना लिया। जब प्रभुपाद जी थे, जब हम ये मंदिर बना रहे थे, खोदते समय 2 प्लैक मिले थे मार्बल के, पत्थर के, जिसमें मराठी में लिखा हुआ था हनुमान जी का मंदिर। तो जब हम खोद रहे थे, जहाँ सीताराम का ऑल्टर है, लगभग उसी स्थान पर अंडरग्राउंड हमें एक बड़ा प्लैक मिला था। तो हमने प्लैक रखा और एक दिन मिस्टर पगे, वो जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, वो आए थे प्रभुपाद जी को मिलने। तो हमने वो पत्थर दिखाया उस मिस्टर पगे को। he was an exported मराठी लैंग्वेज। तो उन्होंने देख कर कहा, ये भाषा स्क्रिप्ट 500 साल पुराना है। मतलब कि 500 साल पहले
इसी स्थान पर हनुमान जी का एक मंदिर था। तो प्रभुपाद जी को जब पता लगा कि इसी स्थान पर मंदिर था, he was very very happy. He was very happy. तो बॉम्बे में प्रभुपाद जी ने कई लीलाओं को प्रकट किया। उन दिनों में भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो प्रभुपाद ने एक दिन 1 बजे रात के मुझे बुलाया और कहा, put this advertisement in all the papers. What? Come and live with us like us. तो आओ, प्रभुपाद जी ने कहा, सारी दुनिया कहती है भारत गरीब देश है, सब आओ, मैं तुम सबको खिलाऊंगा, पर एक शर्त है, जैसे हम रहते हैं वैसे रहो। तो प्रभुपाद जी के मन में सदा यही भाव था कि प्रचार को बढ़ाया जाए। और प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण लहर को क्या कहा था? हेवन ऑन अर्थ। प्रभुपाद ने कहा, वृंदावन इज माई होम, वृंदावन मेरा रहने का ठिकाना है। मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप, मायापुर में क्या, तो मैं भगवान की उपासना करता हूँ। एंड बॉम्बे इज माई, व्हाट डिड प्रभुपाद से? एंड बॉम्बे इज माई ऑफिस। सो दिस हरे कृष्ण लैंड was also given the name heaven on earth, पृथ्वी पर स्वर्ग, जिसका असली अर्थ है ऐसा वातावरण हो कि सदा भगवान के नाम का उच्चारण हो। So we are very happy to be here on this occasion. We are speaking via video. This is the first time I'm missing this program because of COVID. So we hope that all of you will be there all day. This Hare Krishna land was very dear to Prabhupada, and Prabhupada endeavored the hardest. And Prabhupada said, Prabhupada was very pleased when we won all the legal battles. Prabhupada said, this was a great fight, and this is history. Somebody should write a book on this. And taking that inspiration, Gera Swami just published a book recently that describes the history of our movement in Bombay and the endeavors of Prabhupada endeavor to get this land. So Hare Krishna land is very dear to Prabhupada, and our goal should be to fulfill Prabhupada's desire. He wanted everyone who came to the Hare Krishna temple to be influenced by the philosophy. And those who stay here are very fortunate, because this is the temple where Prabhupada endeavored the most, and Prabhupada had very great expectation from this temple. So we want to request our devotees and guests to please take advantage of Hare Krishna land and cultivate Krishna consciousness and help spread Krishna consciousness. जब हमारा झगड़ा हो रहा था कि जमीन प्राप्त लाए परमिशन नहीं मिली थी, तो प्रभुपाद ने एक दिन कहा, okay, we don't want to give us permission, we will convert the Hare Krishna land into a bus stop. A bus stop? उससे क्या मतलब था? प्रभुपाद ने कहा, we will have so many buses and one bus will be loaded, फिर वो जाएगी, फिर दूसरी बस जाएगी, फिर तीसरी बस जाएगी, ऐसे। और प्रभुपाद ने कहा, तो प्रभुपाद से पूछा था एक वक्त ने, how will we decorate Govinda? Prabhupada said, put the books on the wall and decorate Govinda with books on the wall. और बॉम्बे था जहाँ की प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत का अनुवाद समाप्त किया था। So Bombay is historical, and Prabhupada used to carry Radharani's picture with him everywhere. So we're very happy to have the privilege to speak to the devotees in Bombay today. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.